ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੜ ਨਾ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੜ ਨਾ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਨਮ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁਣ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾੜ ਹੀ ਲੜਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਭ ਚੰਗੇ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਜਰ ਕੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜਾਉਣਾ ਪਰ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਨਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਚਮਕਾਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ। ਹਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੂੰ ਖੜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵੇਂ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਹੜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਡਰ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ। 7 ਜਨਮ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜ ਸਕਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਦੋ ਸੀ ਦਵਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਝ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਸੀ ਪਗਾਈ। ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਕੋਏ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਦੁੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਏ 5 ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਜ਼, ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਕਾਤੋਂ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ। ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਡੀਕਦਾ ਆ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਡੀਕਦੀ ਆ ਧੀ। ਉਂਗਲ ਤੂੰ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਂਗਲ ਤੂੰ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਹਾਨ, ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਨ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਨ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਨ। ਹੜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो
मेरे आंसू बता देना, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल? जो चलो बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए। जाग कर दे, क्या हाल चाल है मेरे यारों? सब जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी के? मेरे सब भाव ले जाना, न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੜ ਨਾ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ हाँ जी। ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, क्या हाल चाल हैं? सर आपको कॉपीराइट नहीं आता? बिल्कुल कॉपीराइट मुझे आता है, मैं कॉपीराइट को आता हूँ, कॉपीराइट मुझे आता है, फिर मैं कॉपीराइट को आता हूँ, फिर कॉपीराइट मुझे आता है, चलता रहता है, ये तो ज़िंदगी है मेरे बच्चे। कॉपीराइट का क्या है? हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। आ जाओ मेरे दोस्तों, चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं जी? अब हम कर रहे हैं इनकम टैक्स के क्वेश्चंस, हम प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर चुके हैं। एक सेशन हमारा हो चुका है, उसमें हमने टोटल इनकम वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, और लास्ट क्लास में आई थिंक 4 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन किए थे, और आपको मैंने कहा था कि 3 क्वेश्चन एक बार अपने घर से ट्राई करके आने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा था घर से ट्राई करके आना है, एक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा था घर से ट्राई करके आना है, और एक क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा था कि घर से ट्राई करके आना है। और मैं पूरी पूरी उम्मीद के साथ ये आपको बोल सकता हूं कि आप सब पक्का पक्का से वो क्वेश्चन ट्राई करके नहीं आए होंगे। मुझे पता है आपके बारे में, आपकी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं, आपकी मैं रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है आपने क्वेश्चन किए तो होंगे नहीं पक्का, या किए हैं? किए हैं आपने? नहीं पक्का? हाँ ट्राई किया था, होता नहीं। हाँ कैसी बात करते हो, आप बस कैसे कर लेंगे हम, इतने ऐसे थोड़ा होता है, आप ही कराओ हमें तो। अच्छा चलो आ जाओ फिर, फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब हम एक बार ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं जी। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना जी, ठीक है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और चेक करना क्वेश्चन किस तरह से इसको हमें सोल्व करना है, और कहाँ कहाँ पे तुमसे मिस्टेक हुई होगी। एक बार इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
आ जाओ फटाफट से जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, इधर देखो ध्यान से। हाँ कोई बात नहीं ना, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करवा दूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, बट ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। आओ जी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है मिस्टर निरंजना, अच्छा डॉक्टर, ओ भाई साहब, डॉक्टर निरंजना ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज उसकी 60 साल की है। तो पहली बात तो इंडिविजुअल है, दूसरी बात वो इंडिया की रेजिडेंट है, तीसरी बात एज उसकी 60 साल की है। वो एक क्लिनिक रन कर रही है सूरत के अंदर। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एज अंडर। उसका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक तरफ यहाँ पे डेबिट साइड में खर्चे दिए हैं, क्रेडिट साइड में आपको इनकम दी है, फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल के दे रखा है। ये नेट प्रॉफिट जो है वो 4,40,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो रेंट पेड है, ऊपर जो रेंट पेड है, अब यहाँ पे ये रेंट पेड दे रखा है। कह रहा है रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक टूवर्ड्स रेंट फॉर हर रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत। मतलब उस रेंट पेड में 30,000 रुपए का जो रेंट पेड है वो कौन सा है, रेजिडेंशियल हाउस का उसने रेंट पे किया है। कैसे रेंट पे किया उसने, अकाउंट पे ही चेक से पे किया है। ठीक है जी, मतलब थ्रू चेक पे किया उसने। फिर वो कह रहा है क्लिनिक इक्विपमेंट आर 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग WDV 5 लाख रुपए की है। 7 दिसंबर 24 को उसने एक मशीन एक्वायर की है, चेक से 2 लाख रुपए की है। तो इस पे हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि लेस देन 180 डेज यूज है। इस पे फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि यूज 180 डेज से ज्यादा है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है रेंट रिसीव रिलेट टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत। ग्रोस एनुअल वैल्यू जो है वो 27,000 रुपए की। म्युनिसिपल टैक्स 2,000 रुपए का है। पेड इन दिसंबर 2023 हैज बीन इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर दे रखे हैं उसमें म्युनिसिपल टैक्स पेड भी है 2,000 रुपए का, बस ये पर ध्यान देना। उसके बाद देखो, फिर वो कह रहा है शी रिसीव सैलरी 7,500 पर मंथ फ्रॉम फुल क्योर हॉस्पिटल विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंसल्टेशन और मेडिकल चार्जेस। मतलब जो यहाँ पे कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस दे रखे हैं उसमें जो उसको सैलरी मिल रही है, वो एक हॉस्पिटल में काम कर रही है, वो सैलरी इसमें इंक्लूड नहीं है। अच्छी बात है जी, ठीक है। फिर डॉक्टर निरंजना अवेल्ड ए लोन 5,50,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर हायर एजुकेशन फॉर हर डॉटर। शी रिपे प्रिंसिपल 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट 55,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। अच्छा, इसकी तो डिडक्शन मिलेगी जी। इसके तो क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अगर आपको याद आ रहा हो सेक्शन नंबर 80E, याद करो सेक्शन नंबर 80E जो था वो हायर एजुकेशन पे जो लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट का हमारा सेक्शन नंबर 80E था, ये पॉइंट उसका हो रहा है। फिर कह रहा है शी पेड 1 लाख रुपए ट्यूशन फीस नोट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फीस डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी फॉर द फुल टाइम एजुकेशन फॉर हर डॉटर। अब इस ट्यूशन फीस की वो डिडक्शन क्लेम कर लेगी सेक्शन 80C के अंदर, क्योंकि 2 बच्चों तक की वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो भी हम ट्यूशन फीस पे करते हैं। फिर कह रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹28,000 हैज ऑल्सो बीन पेड बाय द चेक 27 मार्च 2025 फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के उसने 28,000 रुपए की पेमेंट की है। अब अगर एज उसकी, अगर वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो फिर तो 50,000 रुपए की लिमिट है। अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपए की लिमिट है। अब उसने यहाँ पर कितना बोला जी, एज उसकी कितनी है, अगर आप चेक करोगे एज उसकी यहाँ पे 60 साल की है तो सीनियर सिटीजन है, तो 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, तो पूरा का पूरा 28,000 का वो यहाँ पर बेनिफिट क्लेम कर लेगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है आप टोटल इनकम कंप्यूट कर दो निरंजना की असेसमेंट ईयर, हाँ नहीं असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजिम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब दोनों स्कीम से आपको उसकी इनकम निकालनी है, दोनों स्कीम से इनकम निकालनी है जी। डिफॉल्ट स्कीम से भी इनकम निकालनी है और आपको नॉर्मल स्कीम से भी इनकम निकालनी है, दोनों स्कीम से आपको इनकम निकालनी है, बस ये पर ध्यान दो। तो आ जाओ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने के अंदर मजा आने वाला है। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले डिफॉल्ट स्कीम की बात कर लें। अब इस क्वेश्चन को ना करने का ना मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, पहले वो समझते हैं इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। देखो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन है, टोटल इनकम कैसे निकलती है, 5 हेड की इनकम, ठीक है जी, 5 हेड की इनकम, ठीक है जी, प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम,
माइनस में लॉसेस, ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस में डिडक्शन, फिर मेरी टोटल इनकम आती है। अब जब टोटल इनकम वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे पहले पांचों हेड की इनकम को बेस बना के चलना है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब एक बार ऐसा करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। हाँ बहुत इजी है, बिल्कुल सही बात है गौरव, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ गिरा हुआ क्वेश्चन है, उठाना पड़ेगा। आजा आ मेरे बच्चे, मेरे भिंडी मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, इधर आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक तरफ तो यहाँ पर है पर्टिकुलर जी, ठीक है रे, एक तरफ यहाँ पे ये रुपीस लिखते हैं, एक तरफ यहाँ पे रुपीस लिखते हैं, ये लो जी, ठीक है। अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, पांचों हेड की इनकम है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, इनकम अंडर हेड सैलरी। अच्छा पहले मैं किस स्कीम से निकाल रहा हूं, पहले मैं निकाल रहा हूं डिफॉल्ट स्कीम से, पहले मैं डिफॉल्ट स्कीम से निकाल रहा हूं। सबसे पहले सैलरी हेड की इनकम की बात कर रहे हैं। एक बात मेरे को बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सैलरी हेड की इनकम है? क्या इसको सैलरी मिली है? पहले बताओ, इसको कहीं सैलरी मिल रही है जी? हाँ जी, इसको कहीं पर भी सैलरी मिल रही है? चेक करो पूरे क्वेश्चन में जी। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसने कहा था उसको 7500 रुपए की सैलरी मिल रही है। अगर आप चेक करोगे, उसने कहा था 7500 रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है। तो अगर 7500 रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है तो एक बार सैलरी की इनकम निकालते हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पर उसको सैलरी मिल रही है, यहाँ पे बेसिक सैलरी 7500 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 90,000 हो गया। अच्छा अब इसमें माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो माइनस में कर दूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब डिफॉल्ट स्कीम है, 75,000 की डिडक्शन माइनस करूंगा तो यहाँ पर 15,000 की मेरी सैलरी की इनकम आ जाएगी। तो ये तो हो गया इनकम। देखो छोटे छोटे स्टेप्स करके चलेंगे, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक इसको मैं लॉक कर सकता हूं? पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तब मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट से बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकता हूं? पक्का पक्का। तो ये हमारी सैलरी की इनकम आ गई, ये हमारी क्या आ गई? सैलरी की इनकम आ गई। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला हेड उठा लो, अगला हेड हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, देखो मेरी बात समझो, इधर देखो ध्यान से। सही बताऊं, कसम से बताऊं, आपने ना ट्राई किया था ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। जिसने ट्राई नहीं किया वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में जाके। अगर आपने ट्राई किया, नहीं हुआ चलेगा, ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट। बट अब जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना कि क्वेश्चन करना कैसे है, एक एक चीज करके उठाओ। पहले सैलरी हेड उठाया, सैलरी खत्म किया। अब हाउस प्रॉपर्टी, पूरा दिमाग हाउस प्रॉपर्टी में, पूरा दिमाग हाउस प्रॉपर्टी में। ये नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, इतनी एडजस्टमेंट है, पैनिक नहीं होना। एक एक पॉइंट उठाते जाओ, उस पॉइंट को सोल्व करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा, चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। तो सैलरी खत्म हो गया ना, ये मान लो इसमें एक नंबर पक्का हो गया। दूसरा भी यहां पे हाउस प्रॉपर्टी पे आ जाओ जी। अब एक बार चेक करना, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं जी। अब अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूं, सारे बच्चे क्वेश्चन देखो हाउस प्रॉपर्टी में क्या है जी। देखो हाउस प्रॉपर्टी चेक करो। अब उसने बोला कि जो आपको रेंट रिसीव है, ये देखो जी, ये रहा रेंट। अब ये रेंट जो रिसीव है ना 27,000 पे, वो कह रहा है जो तुम्हें रेंट मिला वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू 27,000 पे, म्युनिसिपल टैक्स 2,000 पे, जो आपने पे किया यहाँ पे दिसंबर 2024 आएगा जी। यहाँ पे डेट सही कर लेना, यहाँ पे डेट सही कर लेना, यहाँ पे दिसंबर 2024 आएगा। तो दिसंबर 2024 के अंदर म्युनिसिपल टैक्स पे किया, जो इंक्लूड है एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में। तो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे अब जी। तो सबसे पहले यहाँ पे GAV 27,000 पे, फिर यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना है? 2,000 पे। फिर यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा? 25,000 पे। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना हो गया? 7500। तो बैलेंस कितना आ गया? बैलेंस आ गया 17,500 रुपए की। यहाँ पे आ गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 17,500 रुपए की, ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो जी। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, आपको 1% भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मुझे बताओ। ये तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। अब बताओ दोनों हेड क्लियर हो गए? जल्दी बताओ, क्या दोनों हेड क्लियर हो गए? हमारी सैलरी की इनकम भी आ गई, हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी निकल कर आ गई। दोनों हेड की हमारी इनकम इस क्वेश्चन में खत्म हो चुकी है। अब इनकम हाउस प्रॉपर्टी की हो गई, सैलरी की हो गई। अगला हेड जो है वो है पीजीपी का। अब आ जाओ पीजीपी के ऊपर। अब यहां पे आ जाओ, हेडिंग डाल दो जी। सर यहाँ पे विच एवर इज लेस नहीं होता, क्यों भाई? विच एवर इज लेस क्यों होगा भाई? हेलो, कौन है ढोकला ये? ओए CSASP, विच एवर इज लेस कहाँ पे होता है? अबे नालायक, विच एवर इज लेस तब होता है जब जीएवी निकालते हैं। होए राम, तेरी ऐसी की तैसी। ओए ओए रुको, ओए 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 कहाँ भाग रहा है? इधर ओए, हप नालायक कहीं गए। बेटे म्युनिसिपल टैक्स दिया, ये म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया। कंपैरिजन करते हैं FRV और MB, विच एवर इज हायर, फिर कंपेयर करते हैं SR, विच एवर इज लेस, फिर कंपेयर करते हैं AR, फिर वहां पे GAV निकालते हैं। यहां पर तो उसने बोला रेंट दिया हुआ है, रेंट के अलावा कुछ AR दिया हुआ है, तो AR के अलावा कुछ भी नहीं है, तो जो AR होगा वही तो GAV बन जाएगा। नालायक। अगले पॉइंट पर आओ जी। हम यहां पे, अब यहां पे देखो जी, अब हमें निकालनी है पीजीपी की इनकम निकालनी है। अब हमें निकालनी है पीजीपी की इनकम। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर पीजीबीपी समझ में नहीं आ रहा, अब तुम्हें पीजीपी समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं पूरी क्लास में एक क्वेश्चन करें, दो क्वेश्चन करें, करें तसल्ली से करें, ताकि अगला क्वेश्चन जब ऐसा करें तो गलती ना हो। एक बार अब एक बात बताओ, ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, याद करो। पहले मेरे को ना वो बताओ, सारे बच्चे पहले मेरे को बताओ सेक्शन नंबर 29 में क्या था बताओ। 29 में पीजीपी की इनकम को निकालने का तरीका था। सबसे पहले बेस क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट बनेगा। नेट प्रॉफिट में कितनी एडजस्टमेंट करते हैं? 4 एडजस्टमेंट करते हैं। 2 किसकी? खर्चों की। 2 किसकी? इनकम की। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो कौन सी करते हैं? नेट प्रॉफिट में वो सारे खर्चे ऐड कर देते हैं। कौन से? याद करो, मैंने कहा था जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट, जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने चाहिए, वो सारे खर्चे ऐड कर दोगे। सारे खर्चे माइनस कर दोगे। कौन से? जो डेबिट होने चाहिए थे वो डेबिट नहीं हुए थे, जो डेबिट होने चाहिए थे वो डेबिट नहीं हुए थे, वो सारे खर्चे माइनस कर दोगे। वो सारी की सारी इनकम माइनस कर दोगे। जो क्रेडिट की हुई थी वो क्रेडिट नहीं होनी, जो क्रेडिट की हुई थी वो क्रेडिट नहीं होनी, वो सारी की सारी इनकम माइनस कर दोगे। फिर वो सारी इनकम ऐड कर दोगे जो क्रेडिट होनी चाहिए थी वो क्रेडिट नहीं हुई थी, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी वो क्रेडिट नहीं हुई थी। अब ये सारा ट्रीटमेंट हम करते हैं जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट, सबसे पहले आ जाओ नेट प्रॉफिट को बेस बना लो। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे बाबू, आ जाओ मेरे बच्चे। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले बेस बन गया नेट प्रॉफिट, जो तुम्हारा P&L अकाउंट में दिया हुआ है, जो तुम्हारा P&L में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। एक बार चेक करना P&L में नेट प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है। तो P&L में दिया हुआ है 4,40,400, है ना? 4,40,400, तो ये दिया हुआ है 4,40,400, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? हाँ जी, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ऐड करने की बात कर लेते हैं, क्या क्या ऐड करेंगे। ये ऐसा करते हैं जी, आओ यहां पे आ जाओ। सबसे पहले यहां पे ऐड करते हैं हम, क्या क्या ऐड करेंगे। अच्छा एक बात बताना, आप क्या क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले तो वो ऐड करेंगे जो खर्चे डेबिट किए हुए थे बट डेबिट होने नहीं चाहिए थे, वो ऐड कर दोगे। भाई जो, सुनना ध्यान से, जो इस P&L में डेबिट साइड में है बट वो डेबिट होने नहीं चाहिए, अकाउंट्स वालों ने वो डेबिट कर दिए, इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम डेबिट नहीं करेंगे, सारे ऐड कर दो। बात समझ में आ रही है? फिर वो सारी इनकम ऐड कर दो जो पीजीबीपी की इनकम थी बट इन्होंने क्रेडिट नहीं की हुई थी, वो सारी इनकम भी ऐड कर दो। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले एक बार ना सारे के सारे खर्चे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 4,40,400 है, तो 4,40,400 यहाँ पे आएगा, सॉरी 4,40,400। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड होगा।
तो 1 by 1 एक मिनट को स्क्रीन पूरी कर देता हूँ जी। 1 by 1 आओ जी, चेक करो ऐड में क्या क्या है जी। हाँ जी, चेक करो ऐड में क्या क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, स्टाफ की सैलरी है, सही है। क्लिनिकल कंज्यूमेबल है, सही है। रेंट पेड, हाँ जी। अच्छा एक बात आना, रेंट पेड, सारे बच्चे बोलो रेंट पेड 90,000 पे है। उसमें से वो कह रहे हैं 30,000 पे रेंट पेड जो है वो रेजिडेंशियल हाउस का है। तो भैया रेजिडेंशियल हाउस का रेंट 30,000 पे है, तो भैया ये तो पर्सनल खर्चा है। ये तो उन्होंने बोला जो रेंट 90,000 पे का उसमें 30,000 पे इंक्लूड है जो तुम्हारे घर का रेंट है। अब तुम घर का रेंट पे कर रहे हो तो वो तो पर्सनल खर्चा हो गया ना, वो P&L में डेबिट थोड़ा होगा। तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे आप ऐड करोगे रेंट फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये 30,000 पे आप जोड़ दोगे, जोड़ दिए जी। फिर आप यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स जोड़ोगे, जो उसने कहा था, देखो यहाँ पर जी, जो उसने यहाँ पर कहा था कि देखो ये 2,000 पे म्युनिसिपल टैक्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे तो अलाउड होते हैं, बट 2,000 पे जो म्युनिसिपल टैक्स हैं वो तो मेरे रेजिडेंशियल हाउस के हैं, तो वो अलाउड नहीं होंगे जी। तो म्युनिसिपल टैक्स रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के 2,000 पे ये ऐड कर दिए जी। ठीक है, 2,000 पे यहाँ पर ये ऐड कर दिए। और बताओ और क्या आएगा जी, और बताओ फिर यहाँ पर। अब ये अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव अंडर सेक्शन 35। ओ भाई साहब, वैसे तो 1.5 लाख रुपए अलाउड होता है, बट याद करो डिफॉल्ट स्कीम में, याद आ रहा है, सेक्शन नंबर 35(1)(2) और 35(1)(3) की डिडक्शन नहीं मिलती अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ले रखी होती है। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव अंडर सेक्शन 35। तो ये रिसर्च एसोसिएशन कौन सी है, जो 35(1)(2) की है या 35(1)(3) वाली है? तो ये डिफॉल्ट स्कीम में तो अलाउड होता ही नहीं है। जब ये डिफॉल्ट स्कीम में अलाउड ही नहीं होता तो ये 1.5 लाख रुपए मुझे ऐड करने पड़ेंगे। नॉर्मल स्कीम में ऐड नहीं होंगे, डिफॉल्ट स्कीम में ऐड होंगे। तो 1.5 लाख रुपए ये भी ऐड कर दो। तो यहां पे आ जाओ, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर 1.5 लाख रुपए, लो जी ये भी ऐड कर दिया जी। अब ये सारी चीजें ऐड होने वाली हो गई जी, ठीक है ना। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं यहाँ पर ऐड करने वाले यहाँ पे निकल कर आ गए। तो पहले बात, रेंट मैंने जोड़ दिया, म्युनिसिपल टैक्स मैंने जोड़ दिया, साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ये तीनों पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिए। पहले तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, रेंट जुड़ गया, म्युनिसिपल टैक्स जुड़ गए, और फिर साइंटिफिक रिसर्च वाला जो 1.5 लाख रुपए वाला खर्चा है वो भी तुम्हारा यहाँ पे जुड़ चुका है जी। डन, क्या इसको पैक कर सकते हैं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे आ जाओ, अब अगले पॉइंट पर आओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब यहां पे आ जाओ, माइनस क्या क्या करना है जी। अब यहां पे आ जाओ, माइनस क्या क्या करना है, आ जाओ माइनस क्या क्या करना है। लो जी, सबसे पहले यहां पे करते हैं अब लेस वाला काम। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ लेस वाला काम। अब देखो लेस वाले में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो आ जाओ, इधर आओ, क्रेडिट साइड में आओ, बताओ सारे बच्चे फटाफट से बोलना। हाँ जी, ये कंसल्टेशन चार्जेस, ये तो बिजनेस की इनकम है तो आएगी। इनकम टैक्स रिफंड प्रिंसिपल 5,000, इंटरेस्ट 450, टोटल 5450। तो भैया ये तो बिजनेस का नहीं है, तो बिजनेस का नहीं है तो 5450 तो माइनस करेंगे। इनकम टैक्स रिफंड विद इंटरेस्ट 5450 ये माइनस करेंगे जी, 5450 यहां पर माइनस करेंगे। फिर डिविडेंड मिला फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई 10,500, तो यहां पर हो गया डिविडेंड, यहां पर हो गया डिविडेंड जी, ये आपका हो गया डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई। कितना आपका निकल के आ गया यहाँ पे जी, ये हो गया आपका 10,500, तो 10,500 ये माइनस करेंगे जी। ठीक है, 10,500 ये माइनस करेंगे। उसके बाद फिर अगले पर आओ जी। अब ये आपको मिल रहा है गेम शो टीवी वाला, अदर सोर्स की इनकम है। अब ये नेट ऑफ टीडीएस 15,000, मतलब टीडीएस 15,000 है, और यहां पर आपने क्रेडिट किया 35,000, तो 35,000 यहां से हटा दोगे, तो 35,000 पे यहां से माइनस कर दोगे, तो 35,000 यहां पे माइनस कर देंगे। विनिंग वाला जी, विनिंग ऑफ गेम वाला यहां पर 35,000 पे आपने माइनस कर दिया। ठीक है, ये 35,000 पे हो गया। और बताओ जी, और रेंट हो गया, ये रेंट 27,000 रुपए का, 27,000 रुपए का रेंट माइनस कर दोगे जी। लो जी, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है। रेंट रसीव कितना आ गया,
आपका 27,000 रुपये का रेंट आ गया जी। कितने का आ गया? 27,000 रुपये का रेंट आ गया। तो इनकम टैक्स रिफंड हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, आपने वो सब माइनस कर दिया, तो क्रेडिट था बट क्रेडिट होना नहीं चाहिए था, वो सब कुछ आपने माइनस कर दिया। अब एक बार आ जाओ अदर इन्फॉर्मेशन में आओ। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे ये आप देखो क्लिनिक इक्विपमेंट, इसका मिलेगा डेप्रिसिएशन। इसका क्या? नहीं 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 नहीं, इसको ग्रोस नहीं करेंगे। ओए मयंक, हेलो, ओए ओए ओए, इसको ग्रोस नहीं करेंगे। ग्रोस कब करेंगे? जब अदर सोर्स की इनकम में दिखाएंगे मेरे बच्चे। आप एक बात बताओ ना, इन्होंने क्रेडिट कितना किया हुआ है? इन्होंने क्रेडिट किया हुआ 35,000, तो हम यहां से तो 35,000 हटाएंगे ना भाई। प्रॉफिट में इफेक्ट तो 35,000 का पड़ा हुआ है। जब अदर सोर्स की इनकम दिखाऊंगा तब अदर सोर्स की इनकम में वहां 50,000 लेके जाऊंगा, मतलब जितना भी 35,000 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई 100 जो आएगा, तो वो लेके जाऊंगा अदर सोर्स की इनकम में। जब अदर सोर्स की इनकम में दिखाऊंगा तो वहां पे ग्रोस दिखाऊंगा, ठीक है ना सर? इनकम टैक्स रिफंड अदर सोर्स में जाएगा? नहीं, इनकम टैक्स का रिफंड अदर सोर्स में नहीं जाएगा। इनकम टैक्स के रिफंड का इंटरेस्ट अदर सोर्स में जाएगा मेरे बच्चे। इनकम टैक्स का रिफंड तो किसी हेड की इनकम नहीं है ना यार। एक बात बताओ, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी है, तो इनकम टैक्स का रिफंड तुम्हारी अदर सोर्स की इनकम कैसे है? हाँ, जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो अदर सोर्स की इनकम है। तो 5450 रुपए यहां से हटाऊंगा और अदर सोर्स में सिर्फ 450 लेके जाऊंगा। ये इनकम मेरी कहीं की नहीं है, दैट इज माई पर्सनल इनकम। उसको किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। सर बट आपने बोला था नोट फॉर ऑल में, कहा था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिजनेस इनकम बिजनेस एक्सपेंडिचर करना होता है। पीजी बेटे वो तब करना होता है जब तुम्हें नेट प्रॉफिट ना दिया हो। ऐसा नहीं होता, आप एक बार दोबारा सुनो उसको। वो तब करना होता है जब तुम्हें नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, तो तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब जब तुम्हें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो तुम वो क्यों करोगे? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस क्यों करोगे? और वैसे भी वो रसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, रसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। इनकम एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ठीक है ना? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन जी, ठीक है? ये 27,000 माइनस कर दिए। अब यहाँ पे आएगा माइनस में डेप्रीसिएशन। अब देखो डेप्रीसिएशन कितना आएगा। तो पहली बात तो 5 लाख का जो इक्विपमेंट है उस पर पूरा 15%, फिर जो 2 लाख वाला इक्विपमेंट है उस पर पूरा 7.5%, ठीक है ना? उस पर पूरा 7.5%। तो 5 लाख का 15%, 75,000, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये 27,000 हो गया ना, ये 27 तो माइनस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 लाख का 7.5, मेरे ख्याल से यहाँ पर 15,000 रुपये का ये आ गया जी। 15,000 रुपये का ये डेप्रिसिएशन आ गया जी। डन? क्या इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो जी, क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब एक बार चेक करना क्या ऐड करना और क्या लेस करना है, और कुछ तो नहीं रह गया? एक बार चेक करो, और कुछ तो नहीं रह गया? ये हो गया, ये हो गया, फिर रेंट रसीव वाला हो गया, ठीक है? फिर ये सैलरी हो गया, ठीक है? फिर ये लोन, ये तो डिडक्शन डिडक्शन डिडक्शन, बस काम खत्म हो गया जी। अब बताओ क्या सिंपल है यार। अब तुम्हें लग रहा था सर कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं करना, बस इसका बता दो, ऐड और लेस करके बता दो जी। ऐड और लेस करके बताओ कितना आएगा। 4,40,400 में आपने 30,000 जोड़ा, आपने फिर यहाँ पे 2,000 जोड़ा, आपने यहाँ पे 1.5 लाख जोड़ा, आपने 5450 जोड़ा माइनस किया, सॉरी 10,500 माइनस किया आपने, फिर 35,000 माइनस किया, फिर 27,000 आपने माइनस किया, फिर 75,000 आपने माइनस किया, फिर 15,000 आपने माइनस किया। 4,54,450 रुपये ये तुम्हारी आ गई इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, आ गई 4,54,450 रुपये। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है यार? ये तुम्हारी पीजीपी की इनकम आ गई। अब पहले मुझे यहां तक कोई डाउट है ना? तुम्हारे मन के सारे डाउट्स मैं खत्म कर देता हूँ, यहां तक डाउट पूछ लो दिल खोल के। जो भी तुम्हें छोटे मोटे डाउट्स आ रहे हैं फटाफट से मुझे पूछ लो। फिर हमारा सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीपी हो गया। इसमें कोई कैपिटल गेन की इनकम तो मुझे दिख नहीं रही। अब इसके बाद सीधा अदर सोर्स की इनकम आएगी, इसके बाद सीधा अदर सोर्स की इनकम आएगी। यहां तक कोई डाउट है पहले मुझसे पूछ लो जी, जल्दी बताओ। यहां तक कोई भी डाउट आपको अगर दिख रहा है तो प्लीज आप मुझसे पूछो जी। सीएम में इंटर का कोई नया बैच अलग से नहीं होता,
आप सीए वाला बैच ले सकते हैं मेरा, या सीएस वाला ले सकते हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। सर 15% कैसे आया बेटे? 15% क्लिनिकल इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी पर तो 15% रेट है ना डेप्रिसिएशन का, ये तो हमें याद करना होगा। सर एड लेस याद नहीं रहता, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे याद रहेगा जी। आपको मैं बार बार फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत जल्दी मैराथन लेने वाला हूँ आपकी। चेहरे पे खुशी आ गई ना? देखो कितनी खुशी आती है जब मैराथन की बात होती है, जब प्रोविजन पढ़ाने की बात होती है। मेरे को मैराथन तो लेनी है अर्ली, जो अपना प्री एग्जाम मैराथन मैं लूंगा बहुत जल्दी अगले हफ्ते के अंदर, तो जिसके अंदर मैं टॉप 60 टॉपिक कराऊंगा या टॉप 40 टॉपिक कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स और जीएसटी के। अप्रोक्सीमेट 4-5 घंटे की वो मैराथन होगी, उसमें वो सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर वही बात बोल दूं, थ्योरी से कुछ नहीं होगा, प्रोविजन से कुछ नहीं होगा जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ये प्रैक्टिस सेशन उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पर ध्यान दो। देखो खुशी की लहर देखो, यस सर, सर जान में जान आ गई सर। सर पता नहीं आपने ना इतना कुछ करवा दिया, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि और कराते रहोगा बस सर, आप लगे रहोगा बस सर, बस टेंशन खत्म होगा अपना, हाँ काम खत्म। बोलो जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? सर रेंट दोनों तरफ है कन्वे, अरे बेटे एक तरफ रेंट रिसीव है, एक तरफ रेंट पेड है, कैसी बात कर रहे हो? रेंट रिसीव का मतलब है तुम्हारे पास कोई घर था, तुमने किराए पर दिया हुआ है, उसका तुम्हें किराया मिल रहा है। रेंट पेड का मतलब है तुमने कोई घर किराए पर लिया हुआ है, उसका तुम किराया पे कर रहे हो। तो एक तरफ रेंट पेड है, एक तरफ रेंट रिसीव है, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ, अब अगले पॉइंट पर आओ। चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश, इधर देखो ध्यान से जी। सर क्वेश्चन मैराथन ले लीजिए, इससे अच्छा ये क्वेश्चन के मैराथन ही समझो, क्वेश्चन तो मैं अभी करा रहा हूँ जी। क्वेश्चन के मैराथन ले लूंगा ना 6-7 घंटे की, तुम 1 घंटे के अंदर भाग जाओगे। 1 घंटे में तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं क्वेश्चन करते हुए। कहाँ 12 घंटे तुम क्वेश्चन के मैराथन के अंदर बैठोगे, पता लगे 5-6 की वॉचिंग आ रही है बस। चलो क्लियर है? ये तुम्हारी पीजीपी की इनकम आ गई 4,54,450 रुपए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे आ जाओ, कैपिटल गेन की इनकम तो है नहीं जी। डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया होगा, कुछ रेट आपको याद भी करने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा था मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, जो रेट हमने रेगुलर बैच में याद किए थे वही सारे रेट तुम्हें याद करने हैं। उसके अलावा कोई होगा वो तुम्हें नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होगा, बट ये बेसिक बेसिक रेट जो होंगे वो हमें याद करने होंगे जी। यूटीआई अदर सोर्स की इनकम है, यूटीआई अदर सोर्स की इनकम है, कैपिटल गेन तो आएगा नहीं। अब यहां पे आ जाओ अदर सोर्स, अब यहां पे आ जाओ अदर सोर्स, अब यहां पे आ जाओ अदर सोर्स की इनकम। देखो ये अदर सोर्स की इनकम कौन कौन सी है। अब अदर सोर्स की इनकम में अगर मैं चेक करता हूं, अदर सोर्स की इनकम में कौन कौन सी इनकम आ रही है। एक तो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कितना है जी? 450 रुपए, ये मेरी अदर सोर्स की इनकम है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? डिविडेंड। अब जो आ रहा है डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, कितना है डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई? 10,500, ये हो गया जी। उसके बाद फिर यहां पर आ रहा है विनिंग वाली जी, विनिंग फ्रॉम टीवी। अब यहां पर तुम्हें ग्रोस इनकम दिखानी है भाई, वहां नेट क्यों दिखाई? क्योंकि नेट इनकम ही पी&एल में क्रेडिट की हुई थी, पर जब इनकम शो करेंगे अदर सोर्स में तो ग्रोथ शो करेंगे। वो कैसे निकालोगे? 35,000 है, अब 30% टीडीएस कट गया होगा तो मतलब ये 70 के बराबर है, मल्टीप्लाई 100, तो ये 50,000 रुपए की आपकी विनिंग वाली इनकम आ गई जो ग्रोस इनकम होगी। तो यहां पर आपको ग्रोस इनकम दिखानी है, यहां पर आपको ग्रोस इनकम दिखानी है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। ये आपके अदर सोर्स की इनकम हो गई, और तो कोई इनकम अदर सोर्स की है नहीं जी, 1 2 3 इनकम ही निकल के आ रही है बस। तो कितना आ गया? 450 प्लस में 10,500 और प्लस में 50,000, तो ये हो गया 60,950 रुपए आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रहा है। 60,950 रुपए आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रहा है। अब निकाल लो यहां पे जी, अब निकालो ग्रोस टोटल इनकम जी। सर डिविडेंड वाली 15,000 नहीं होगी, डिविडेंड वाली 15,000 नहीं होगी मतलब भाई कितनी इनकम दे रखी है डिविडेंड वाली? हाँ 10,500 तो दे रखा है,
B&L के क्रेडिट साइड में यहाँ पर उन्होंने कितना दिखा रखा है, 10,500, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, ग्रोस ही तो है। 15,000 क्यों आएगी भाई, 15,000 किस लिए आएगी, ग्रोस इनकम दे रखी है तो ग्रोस ही तो लेके चलेंगे। सर ये 70,000 कैसे आया, अब बेटे 70 नहीं है, अरे यार भाई राम, एक बात बता भाई, सुन मेरी बात, विनिंग वाले केस में टीडीएस कितना कटता है, जो लॉटरी होती है, लॉटरी लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, इन सब में टीडीएस कितना कटता है, 30%। तो 30 टीडीएस कट गया, मतलब 70 बैलेंस रह गया भाई, 100 रुपए में से 30 रुपए टीडीएस काट लिया, 70 बच गया ना, तो मतलब इस पे टीडीएस कटा हुआ है, मतलब ये वैल्यू 70 के बराबर हो गई ना। तो अगर ये वैल्यू 70 के बराबर है तो 100 कितना आएगा, मतलब ग्रोस वैल्यू कितनी आएगी, 50,000, ऐसे ही तो आएगा। सर अगर यहाँ पे ग्रोस होता तो टीडीएस काट के दिखाना था, क्यों टीडीएस काट के दिखाना था, क्या हो गया तुम सबको यार, ये अब तुम्हें याद आ रही हैं चीजें हैं, क्यों टीडीएस काट के दिखाना होगा, इनकम हमेशा ग्रोस शो होती है, अगर ग्रोस, अगर उन्होंने ग्रोस दी है तो हम ग्रोस लेके चलेंगे, नेट वहां पे दी है तो वहां माइनस करके यहां पे ग्रोस दिखाएंगे। इनकम हमेशा ग्रोस दिखाते हैं, कभी भी नेट इनकम नहीं दिखाते। हम ग्रोस टोटल इनकम निकाल रहे हैं ना, तो ग्रोस टोटल इनकम में नेट इनकम का क्या काम है, टीडीएस तो बाद में माइनस करते हैं जब टैक्स निकल के आता है। नालायक। सर अगर 25% दिया होता तो 75 करते, 25 क्यों दिया होता बताओ, क्यों दिया होता, रेट ही 30% है उसका, जो रेट टीडीएस का होगा वही तो लगाओगे। अगर यहाँ रेट 10 होता तो डिवाइड बाय 90 कर देता बस, टीडीएस का 25% वाला कोई रेट ही नहीं है, 10% वाला रेट है या 30% वाला रेट है या 1% वाला रेट है, 5% वाला रेट है। अगर यहाँ 10% टीडीएस कटा होता तो 100 में से 10 गए 90, फिर ये 90 होता। पैंतीस में डायरेक्ट 15 ऐड नहीं कर सकते, कर सकते हो, 35 में डायरेक्ट 15 ऐड कर सकते हो, बट अगर ये 15 नहीं दिया होता तो क्या करते, यहां तो 15 दे दिया उसने, अब बताओ क्या करोगे, बताओ अब 15 कहां से लाओगे, ये तो उसने दे दिया, यहां पर हर क्वेश्चन में 15 दिया नहीं होता, हर क्वेश्चन में 15 नहीं दिया होता, ये बात ध्यान रखना। ये तो उसने यहां पर तुम्हें 15 दे दिया, अब उसने बोला कि 35,000 रुपए की इनकम है, नेट ऑफ टीडीएस है, तो अब कैसे 50 पे आओगे, तो वो तरीका जो है वो हर क्वेश्चन में चलेगा। यहां 15 दे दिया तुमने, 35 में 15 जोड़ दिया, अगर 15 नहीं दिया होता तो, जो कि हर क्वेश्चन में दी ऐसा ही होता है, तो फिर 35,000 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, तो फिर 50,000 आता। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां तक पहले ग्रोस टोटल इनकम निकाल लो जी, ठीक है ना, तभी मैंने कहा था घर से थोड़ा सा ना हाथ पैर उठाया करो और किया करो क्वेश्चन, अब तुम्हें अपना पता नहीं मेरे साथ ही करने होते हैं, तो मेरे साथ प्यार हो गया ना, मेरे से आगे चलते ना पीछे चलते, बच्चे कहते ना सर का बस सर आपके साथ ही चलेंगे यार, हमने ज़्यादा मेहनत ऐसे क्या करेंगे करके, जितना आप करवाते हो उतना कर लेते हैं, पता टाइम इम्पोर्टेंट, समझा करो आप बस सर हमारी बात। अब एक बार यहाँ पे देखना कितना आ रहा है जी, अब ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है जी, ग्रोस टोटल इनकम तुम्हारी आ रही है 15,000, फिर यहाँ पे 17,500, ठीक है, और फिर यहाँ पर तुम्हारी आ रही है 4,54,450, तो 4,86,950 प्लस में 60,950, तो 5,47,900 यही आ रहा है जी, 5,47,900, एक बार दोबारा दिया, 15,000 प्लस में 17,500 प्लस में 4,54,450, 4,54,000 प्लस में 60,950, सॉरी 5,47,900 ये आ रहा है जी, 5,47,900 आ रहा है जी, 5,47,900 इतना ही आ रहा है ना ग्रोस टोटल इनकम। अब इसमें से क्या कोई डिडक्शन माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम है, डिफॉल्ट स्कीम में डिडक्शन माइनस होती नहीं है जी, तो 5,47,900
डिडक्शन आती नहीं इसमें। अब इस पे टैक्स निकालना, तो पहले 3 लाख तक तो नील है, 3 लाख से लेके 7 लाख, तो इसमें 3 लाख का 5% ये आएगा, टैक्स आएगा 12,395। पता कैसे आया? 3 लाख तक तो नील है, 3 लाख से ऊपर कितने हैं? 2,47,900 का 5%, इतना टैक्स आएगा। अब इतने की मिल जाएगी रिबेट, क्योंकि इनकम 7 लाख तक है ना, तो 7 लाख तक तो रिबेट मिल जाती है, टैक्स आपका नील हो गया जी। तो यहाँ पे आपका टैक्स नील आएगा अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है। एक बार चेक करना टैक्स आपका नील आ रहा है जी। पूछा नहीं है बट मैंने वैसे निकाल दिया, पूछा नहीं है, टैक्स निकाल दिया, मेरा मन कर रहा था टैक्स निकालने का। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, बोलो। क्लियर है? ठीक है। अब इसी को ना, अब इसी को नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ये आपने डिफॉल्ट में निकाला ना, ये आपने डिफॉल्ट में निकाला, इसी को नॉर्मल स्कीम के बेस पे निकालते हैं। अब यहां पे आ जाओ, नॉर्मल स्कीम। अब यहां पे बात करते हैं नॉर्मल स्कीम। अब नॉर्मल स्कीम की बात करते हैं। अब एक बात मेरे को बताना, 5 लाख यहां पे आपकी टोटल इनकम आ रही है एज पर डिफॉल्ट टैक्स 5,47,900, 5,47,900 आपकी डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग इनकम आ रही है। अब इसको नॉर्मल के अकॉर्डिंग निकालना है। अब इसको नॉर्मल के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है? अब सुनो सुनो, इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या होंगी। पहली बात, इसमें ऐड कर दो क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 75 माइनस की थी ना, नॉर्मल में तो 50 है, तो 50 माइनस होनी चाहिए, आपने 75 कर रखी है, तो 25,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन के 25,000 रुपए आपने यहां पे ऐड कर दिए। फिर माइनस कर दो क्या? वो साइंटिफिक रिसर्च वाले जो 1.5 लाख रुपए जोड़े थे आपने, वो माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल स्कीम में वो डिडक्शन मिल जाती है। साइंटिफिक रिसर्च डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, 1.5 लाख रुपए, ये माइनस करने पड़ेंगे जी। ठीक है, ये आपको माइनस करने पड़ेंगे बस, और तो बाकी सारी एडजस्टमेंट तो सेम ही है जी। तो 5,47,900 प्लस में 25,000 माइनस में 1.5 लाख, तो 4,22,900, ये मेरी आ गई ग्रोस टोटल इनकम। क्या आ गई? ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से अब माइनस करेंगे डिडक्शन। अब डिडक्शन कौन कौन सी रही? पहला 80C ट्यूशन फीस, कितनी है? 1 लाख। फिर यहां पे सेक्शन जो आएगा वो आएगा 80D मेडिकल इंश्योरेंस, 60 साल का है तो पूरे के पूरे 28,000 की मिल जाएगी। फिर यहां पे सेक्शन आएगा 80E हायर एजुकेशन के लोन के इंटरेस्ट का कितना है? 55,000। तो ये हो गया 1 लाख प्लस में 55,000 प्लस में 28,000, तो 1,83,000, 1,83,000। अब ये बैलेंस कितना हो गया? 4,22,900, तो 2,39,900। ये मेरी टोटल इनकम आएगी जी। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अब इस पे टैक्स निकालोगे, टैक्स इसका भी नहीं लाएगा जी, टैक्स इसका भी यहाँ पे नहीं लाएगा टैक्स, क्योंकि 2.5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट होती है। तो अगर इनकम 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है तो यहाँ पर टैक्स इसका नहीं लाएगा जी। डन जी, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर यही नहीं समझ आ रहा, बताओ इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, बताओ क्या क्या समझ नहीं आ रहा, इस पॉइंट में तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा, बताओ। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, खुल के बताओ। सर मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 नहीं आएगा, क्यों आएगा? एज 60 साल की है, 60 साल में 50,000 रुपए की लिमिट होती है, तो 25,000 क्यों आएगा? ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, 60 साल की एज है। आगे जी, हाँ हाँ, एग्जाम के अंदर भी ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल जी, एग्जाम के अंदर भी ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट से कर दिया, डिफॉल्ट से नॉर्मल में आ सकते हो। सर डिडक्शन याद नहीं हो रही, वो तो याद करनी पड़ेगी अब,
देखो वो तो थोड़ा सा आपको डेली बेस पे रिवीजन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें फिर आपको याद आ जाएंगी जी। ना डिफॉल्ट के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ 3 मिलती हैं, 80 CCD2, 80 JJ AA और एक 80 CCH2, ये मिलती हैं बस। अच्छा ये लास्ट में जो डिडक्शन मिली है भाई, वो तो देखो याद करनी पड़ेंगी यार, वो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता अब इसका तो। ये तो हमने डिडक्शन का चैप्टर पढ़ा था ना, अब उसमें मैंने भी कहा था कि डेली बेस पर डिडक्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी जी। सर कौन से ऐड होंगे, कौन से खर्चे लेस होंगे, उसके लिए पीजीपी का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 30 से लेकर 38 में जो खर्चे हैं वो माइनस होते हैं, सेक्शन 40 में जो खर्चे हैं वो ऐड होते हैं। अब वो चैप्टर अगर याद होगा, मैंने कहा ना प्रोविजन के बिना क्वेश्चन भी नहीं होंगे। अगर तुम समझो कि प्रोविजन के बिना क्वेश्चन, वो तो इम्पॉसिबल है कि हमने सर चैप्टर नहीं याद आ रहा बट क्वेश्चन कर लें, वो तो इम्पॉसिबल है। बट खाली प्रोविजन पढ़ के क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी दिक्कत वाली बात है, दोनों हमें साथ में लेके चलने हैं। सर 25,000 रुपए की ऐड की, क्यों की, क्यों, एक बात बताओ। अब जो तुम्हारे ये प्रॉफिट दे रखे हैं इसमें 75,000 की डिडक्शन माइनस की हुई है ना। आप एक बात बताना, ऊपर यहाँ पे जो डिडक्शन माइनस की हुई है वो कौन सी माइनस की है, 75। उसके बाद ही तो तुम्हारे ये प्रॉफिट निकल के आए हैं, तो मतलब इसमें 75,000 की डिडक्शन जो है वो माइनस की हुई है। अब हमें करनी है 50 की, उसमें किया -75 की, तो फिर प्रॉफिट हमारे बढ़ेंगे ना भाई। डिडक्शन माइनस होनी चाहिए 50 की, तुमने कर रखी है 75 की, तो 25,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे जी आपके जी। डन, लॉक करें जी। चलो अब इसको लॉक कर रहे हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे निकल के आता था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार दोबारा से इसको पढ़ना और करना तब अच्छे से समझ में आएगा जी। ठीक है, दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से भी आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, चलो अब एक बार आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आज वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। अभी तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं दोबारा से, 7 8 9, मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन करने हैं टोटल इनकम वाले, 25-30 क्वेश्चन है, चाहे मेरे सेशन 7 लग जाएं, क्वेश्चन सारे कराऊंगा। इसके बाद आपके दिमाग के नट खुल जाएंगे बढ़िया से कि भाई साहब मजा आ गया करके जी। ठीक है ना, तो आओ एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ते हैं जी। एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक बार ना क्वेश्चन सिर्फ इतना दिखा रहा हूं, एक बार पहले इतना क्वेश्चन पढ़ना। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, बस फटाफट से ये क्वेश्चन नंबर 6 एक बार इतना पढ़ लो बस। हाँ जी, डन। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ जी, अब एक बार यहां पे आ जाओ, इसको देखो यहां पे जी, एक बार इसको देखो यहां पे फटाफट से जी।
अब एक बार ऐसा करते हैं, आ जाओ, अब एक बार स्टार्टिंग से मैं भी साथ साथ पढ़ता हूँ जी। आ जाओ स्टार्टिंग से एक बार साथ साथ पढ़ते हैं। आ जाओ एक बार स्टार्टिंग से ना साथ साथ पढ़ते हैं, उसको फिर हम करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लो जी इधर देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। पहली बात, मिस पूर्वी है, एज 55 साल है। देखो एज 55 साल है तो एज 60 साल नहीं है, एज कितनी है, 55 साल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट अकाउंटेंट, आप कुछ भी लेके चल सकते हो, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, शी मेंटेन हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। अब यहाँ पे उसने यहाँ पर दे रखा है कौन कौन सी इनकम उसको आ रही है, फिर कौन कौन से खर्चे वो कर रहा है, फिर ये भी सारे खर्चे उसने यहाँ पे दे रखे हैं। अब अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, कह रहा है अलाउेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मोटर कार, देखो 15, अब रेट उसने दे दिया। कई बार क्वेश्चन में रेट दिया होता है, कई बार क्वेश्चन में रेट नहीं दिया होता, हमें पता होना चाहिए। यहां उसने दे दिया कि गाड़ी वाले केस में 15% लगाना है, ठीक है। कह रहा है वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन 10,500, याद है। अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है ड्यूरिंग द बिजनेस और प्रोफेशन तो भैया वो टैक्सेबल होता है जी, ठीक है। सेक्शन नंबर 28 याद करो, बेनिफिट परक्यूजिट ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन मिल रहे हैं तो वो क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। फिर इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एट फर्स्ट अटेम्प्ट, इंसेंटिव दिया जा रहा है। अब ये सीए है, इसके अंदर आर्टिकल है, उनको इंसेंटिव दे रहे हैं तो इसके बिजनेस का एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। ये सेक्शन 37 में इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मान लो सीएस है, सीएस के अंदर कोई ट्रेनी है, उसने सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम निकाल दिए, उसको इंसेंटिव मिल रहा है तो वो सीएस अपने पीएनएल में डेबिट कर सकता है। सेम सीए सेम सीएमए के अंदर भी पॉइंट आएगा जी। उसके बाद देखो जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 रुपये फॉर पीरियड ऑफ 1/10/24 से 30 सितंबर 2025। अब उसमें रिपेयर मेंटेनेंस में, मतलब रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ कार में इंक्लूड है 2000 रुपये फॉर द पीरियड फ्रॉम, यहां से लेके यहां तक। अब ये पॉइंट उसने क्यों बोला है आगे रखे देखते हैं। कह रहा है सैलरी जो दी है उसमें इंक्लूड है 30,000 रुपये कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट। अब देखो 30,000 रुपये दिए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को कैश में, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है सर। 10,000 से ऊपर कैश अलाउड ही नहीं है। 35,000 रुपये ट्रांसपोर्टर वाले केस में लिमिट होती है, 10,000 रुपये की नॉर्मल लिमिट है, 35,000 रुपये कैश में है, सॉरी 30,000 रुपये कैश में है तो 30 के 30 डिसअलाउड होंगे, ऐड करने पड़ेंगे हमें जी। रिपेयर मेंटेनेंस वाला समझा दूंगा, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो क्वेश्चन। फिर आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकट फॉर फॉरेन टूर 32,000 रुपये, और जो एज पर आरबीआई नो, अब ये 32,000 रुपये फॉरेन टूर पे खर्चा हुआ। अब ये नहीं बताया ये फॉरेन टूर पर्सनल है या बिजनेस के हैं। अब ये टूर अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो 32 के 32,000 रुपये अलाउड हो जाएंगे, अगर तुम बिजनेस से रिलेटेड नहीं मानोगे तो 32,000 रुपये अलाउड नहीं होंगे। आगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट 5,000 10,000 रिस्पेक्टिवली पेड इन कैश। तो भैया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो तो कैश में अलाउड ही नहीं होता, वो तो अदर देन कैश में अलाउड होता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो चल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कैश में अलाउड नहीं होता जी, उसकी डिडक्शन कैश में मिलती नहीं है, अदर देन कैश में होना चाहिए। फिर उसने 10,000 रुपये नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में लगाए, इसका 80C के अंदर बेनिफिट मिलेगा। 70,000 रुपये एडवांस टैक्स पे किया उसने तो इसको तो बाद में माइनस करेंगे। अब उसने बोला टोटल इनकम निकाल दो और टैक्स पेबल निकाल दो पूर्वी का 25-26 का मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, मतलब दोनों स्कीम से क्वेश्चन करना है, डिफॉल्ट स्कीम से भी करना है और नॉर्मल स्कीम से भी करना है। आजो लगते हैं, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। आपको मजा आता है कहाँ सर, हमें तो नहीं आता, पता नहीं हमारा टैक्स का पेपर कब कब क्लियर होगा। मैं भगवान, हे हनुमान जी, हर मंगलवार 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा बूंदी का, वो भी मोती चूर के लड्डू, बोलोगे लड्डू दे दूंगा भगवान जी, पेपर क्लियर कर दे बस मेरा टैक्स का। उई आओ जी, आ जाओ फटाफट से आओ। तो पहले हम डिफॉल्ट स्कीम की बात करते हैं जी, ठीक है। पहले हम किस स्कीम की बात करते हैं, पहले हम डिफॉल्ट स्कीम की बात करते हैं कि डिफॉल्ट स्कीम में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ। यहां पे डिफॉल्ट स्कीम की बात करते हैं जी। अब यहां पे देखो सबसे पहले पहले मैं बताऊं क्या सैलरी की इनकम दी है,
क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी सैलरी की इनकम दी है? नहीं दी जी, तो सैलरी तो नहीं दी, यहां पे सैलरी नहीं दी जी। उसके बाद फिर यहां पे हाउस प्रॉपर्टी, हाँ जी, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रहेगा? हाउस प्रॉपर्टी। अब सैलरी हमें दी नहीं, हमें तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम चेक करो यहाँ पे जी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी निकल के आ रही है, एक बार पहले वो देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे है कितनी। आओ जी, एक बार हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखो यहाँ पे जी। यहाँ पे देखो आपको रेंट कितना दे रखा है, तो रेंट रिसीव फ्रॉम रेजिडेंशियल 85,600, 85,600 रुपये का रेंट है, ये लो जी। तो 85,600 रुपये का रेंट है। फिर यहाँ पर बात हो रही है म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ पे चेक करना म्युनिसिपल टैक्स कौन से हैं जी। तो म्युनिसिपल टैक्स हमें यहाँ पे अगर दे रखे हों, म्युनिसिपल टैक्स कहाँ पर है, ये रहे म्युनिसिपल टैक्स पेड, 3,000 रुपये के म्युनिसिपल टैक्स पेड हैं जी, 3,000 रुपये के म्युनिसिपल टैक्स पेड है। ठीक है, ये म्युनिसिपल टैक्स पेड हो गए, ये होगा 82,600 माइनस में 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो 82,600 का 30% कितना आएगा? 24,780 माइनस 82,600, यार है 57,820, क्या आ रहा है? 57,820 रुपये, ये आ रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 57,820 की आ रही है जी। ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। चलो, हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो गया जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब नेक्स्ट मेरा आ गया पीजीबीपी, नेक्स्ट मेरा आ गया पीजीबीपी जी। अब एक बार चेक करना, अगर मैं पीजीपी की बात करता हूं तो सबसे पहले यहां पे नेट प्रॉफिट दे रखा है 9/28/224। अरे पीडीएफ उसके अंदर ही है यार, इनकम टैक्स प्रैक्टिस मैनुअल के नाम से देख लो, मिल जाएगी। जो लिंक ड्राइव के अंदर दे रखा है ना, उसके अंदर ही है। यहाँ पे है 9/28/224। अब इसमें सारे के सारे खर्चे पहले तो वो ऐड कर दो जो डेबिट किए हुए थे, बट वो डेबिट होने नहीं चाहिए थे। तो सबसे पहला यहाँ पे सैलरी जो आपने पे की है कैश में, वो कंप्यूटर वाले को 30,000 रुपये वो ऐड कर दो। फिर यहाँ पे आप ऐड कर दो जी, यहाँ पे आप ऐड कर दो। अब उसने बोला यहाँ पर चेक करना जी, अब उसने देखो यहाँ पर जी, यहाँ पे उसने दे रखा है परचेज ऑफ कार 80,000 रुपये। बताओ, अब कार खरीदी आपने 80,000 रुपये की, तो कार खरीदी तो ये कोई डेबिट थोड़ा होगा, इस पर तो डेप्रीसिएशन मिलेगा। तो 80,000 रुपये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि कैपिटल खर्चा पूरा डेबिट नहीं होता, इस पे डेप्रीसिएशन मिलता है। तो 80,000 रुपये कार का ऐड कर दो, कार परचेज की 80,000 रुपये की, ये ऐड कर दिया। फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये भी ऐड होंगे क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी के होते हैं। 3,000 रुपये के म्युनिसिपल टैक्स हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे बेनिफिट रिसीव्ड। अब बेनिफिट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन, देखो यहाँ पर बेनिफिट मिल रहे हैं जी। ये परक्यूजिट, ये 10,500 के, ये 10,500 रुपये के, ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे जी, 10,500 के। बस, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है जी। इसके अलावा और कुछ हो, ये हो गया। ट्रैवलिंग खर्चा हम बिजनेस का मान लेते हैं, ट्रैवलिंग खर्चा बिजनेस का है तो अलाउड है, अगर बिजनेस का नहीं है तो 32,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, बट हमें एज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस का, इसका कुछ नहीं करेंगे जी। तो ये तो हो गया। उसके बाद अब यहां पे आ जाओ माइनस वाला जी। अब यहां पे लेस करने वाले खर्चे पर आ जाओ। लेस करने वाले खर्चे में देखो पहले तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड में क्या क्या है, यहां पे एक बार चेक करना पी एंड एल क्रेडिट में क्या क्या है। देखो जी, तो ये डिविडेंड आ गया, तो डिविडेंड यहां से हटाना पड़ेगा। फिर इनकम फ्रॉम यूटीआई ये हटाना पड़ेगा, और ये जो आपको मिल रहा है आंसर शीट चेक करने के लिए, ये भी अदर सोर्स की इनकम है, ये भी हटाना पड़ेगा, और ये रेंट भी हटाना पड़ेगा। तो पहले ये हटा देते हैं जी। तो पहले यहां से आप हटा दो डिविडेंड 10,524। फिर यूटीआई वाली इनकम 7,600 रुपये, 7,600 रुपये। फिर यहां पर आपका आ गया आंसर वैल्यूएशन वाला, आंसर शीट वाला, कितना आ गया? 15,800 रुपये। और फिर यहां पे रेंट आ गया 85,600 रुपये, ये माइनस कर देंगे। अब इसमें से एक और माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। अब बताना डेप्रीसिएशन कितना मिलेगा जी।
अब अगर डेप्रीसिएशन निकालता हूं तो डेप्रीसिएशन जो है वो यहाँ पर कितना मिलेगा जी? हाँ जी, डेप्रीसिएशन जो है वो इस वाले क्वेश्चन में कितना मिलेगा डेप्रीसिएशन? तो मोटर कार है। अच्छा, मोटर कार इन्होंने परचेज कब की है? 80,000 रुपए की है और 15% रेट है। अब ये नहीं बताया पुट टू यूज कब है जी। मैं दोबारा बोल दूं, ये नहीं बताया पुट टू यूज कब है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर पुट टू यूज मुझे नहीं बताया कब है तो या तो मैं 180 डेज या उससे ऊपर मानूंगा या लेस देन 180 मानूंगा। अगर 180 डेज या उससे ऊपर मानूंगा तो मुझे पूरा डेप्रीसिएशन मिलेगा 15%, और अगर 180 डेज से कम मानूंगा तो फिर मुझे मिलेगा हाफ डेप्रीसिएशन 7.5%। तो बताओ क्या मानूं? 180 डेज या उससे ऊपर मान लेता हूं जी। तो यहां पे डेप्रीसिएशन जो है आपका 80,000 का 15%, तो 12,000 रुपए का डेप्रीसिएशन आ गया जी। 12,000 रुपए क्या आ गया? 12,000 रुपए का डेप्रीसिएशन आ गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो जी, फटाफट से बताओ, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? पक्का पक्का जी। चलो अब एक बार चेक करना कितनी पीजीपी की इनकम आ गई। तो एक बार यहाँ पे देखो, 928, 224, तो प्लस में 30,000, प्लस में 80,000, प्लस में 3,000, प्लस में 10,500, ठीक है, फिर माइनस में 10,524, माइनस में 7,600, माइनस में 15,800, माइनस में 85,600, फिर माइनस में यहाँ पर आएगा 12,000, यार 920, 200। तो मेरी बिजनेस की इनकम जो निकल के आ रही है वो आ रही है जी 920, 200 जी। यार ये 920, 200 ये मेरी पीजीपी की इनकम निकल के आ रही है जी। ये मेरी पीजीपी की इनकम निकल के आ रही है 920, 200 जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? तो ये मेरी बिजनेस की इनकम आ गई। डन? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? ठीक है। अब क्या पूरे क्वेश्चन में अदर सोर्स की इनकम है? अदर सोर्स की जल्दी बताओ फटाफट से। कैपिटल गेन की इनकम तो नहीं है, बट क्या अदर सोर्स की इनकम है? बिल्कुल जी। अब यहाँ पे अदर सोर्स की इनकम निकाल लो। अब यहाँ पे अदर सोर्स की इनकम निकालो। अदर सोर्स वाली इनकम कितनी आएगी जी? सर 10,500 को ऐड क्यों किया? मेरे बच्चे, ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन तुम्हें कोई भी गिफ्ट बेनिफिट मिलता है तो विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट तो ऐड होता है ना। याद करो सेक्शन 28 के अंदर क्या था कि अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, परक्यूजिट मिल रहा है ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन, तो वो तुम्हारी बिजनेस की इनकम बनेगा विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट जी। अब अदर सोर्स की इनकम में देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा। एक तो आएगा डिविडेंड 10,524, एक यहाँ पे आएगा यूटीआई वाली इनकम, कितना आएगा? 7600, और एक यहाँ पे आएगा आंसर शीट वाला, आंसर पेपर वाला जी, कितना आ रहा है? 15,800। तो 15,800 प्लस में 7600 प्लस में 10,524, तो ये जो इनकम आ रही है वो 33,924 रुपए की इनकम आ रही है जी। 33,924 रुपए की इनकम आ रही है मेरी अदर सोर्स की। बस खत्म हो गया मेरे ख्याल से जी। और कुछ तो नहीं मेरा बच्चा, जो मुझे लग रहा है, बाकी तो मुझे पता नहीं। एक बार मुझे आप बताना इसके अलावा कुछ इनकम तो नहीं है। देखना कितना आ रहा है जी यहाँ पे आपका 57,820 प्लस में 920, 200, 33,924, तो ये इनकम आ रही है 10,11,944। ये इनकम आ रही है जी। ठीक है। अब बस यहाँ पे टैक्स निकाल दो इस पे। अब यहाँ पे टैक्स निकाल दो। अब पहले 3 लाख तो एग्जम्प्ट हो गए, पहले 3 लाख पे तो नील आएगा, फिर अगले 4 लाख का 5%, ये आ गया 20,000, फिर अगले 3 लाख का 10%, ये आ गया 30,000, फिर 10 लाख से ऊपर है 11,944 का आपका हो गया 15%, तो 11,944 का 15%, ये हो गया 1791। तो अगर मैं टैक्स निकालूंगा टोटल, ये 30 प्लस में 20, 51,791, ये टैक्स आ गया जी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसमें आप सेस ऐड कर दोगे, कितने परसेंट? 4%, 4% सेस जोड़ दो जी, कितना आएगा? 2072। ठीक है। तो टोटल कितना आ गया? 51,791, तो टोटल हो गया 53,863, ये आंसर निकल के आ गया। अच्छा आप सुनो ध्यान से, रही
अब एक बच्चा कह रहा है सर रिपेयर वाले केस में क्या करना है, रिपेयर वाला पॉइंट दोबारा से पढ़ो। कह रहा है रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 पे फॉर पीरियड, ठीक है, फ्रॉम 1/10/24 से 30 सितंबर 2025। मतलब वो ये बात कहना चाह रहा है कि 1/10/24 से 30 सितंबर 2025 तक के इसमें 2000 पे इंक्लूड है। तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? एक बात मेरे को बताना, रिपेयर मेंटेनेंस एंड कार 4000 पे है, बहुत ध्यान सुना, 4000 पे है। अच्छा उसमें 1/10/24 से लेकर 30 सितंबर 25, मतलब अगले साल के 6 महीने के भी उसमें इंक्लूड है। तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो वो क्या कर रहा है, वो कैश बेस यूज कर रहा है। उसने ऊपर देखो लिखा है कैश बेस, तो डिडक्शन ऑफ पेमेंट बेस पर मिलेगी ना। अब जब पेमेंट कर दी है तो आप पूरी की पूरी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर ये पेमेंट बेस नहीं होता तो फिर अगले साल के 6 महीने के खर्चे जो 1000 पे निकल के आ रहे हैं मुझे ऐड करने पड़ते जी। अब वो कैश बेस यूज कर रहा है तो कैश बेस में तो कुछ भी नहीं करेंगे, कैश बेस के अंदर तो सारा ही मुझे अलाउड होता है। ठीक है, अब यहां पे 70,000 पे तुम्हारा एडवांस टैक्स कटा था, 70,000 पे, तो बाकी रिफंडेबल आ जाएगा जी। तो 16,137 रुपए जो है ये मेरा बनेगा टैक्स रिफंडेबल। भाई साहब क्या क्वेश्चन है यार, हाय राम। पूरे पेपर के अंदर अगर 3-4 क्वेश्चन बन जाए ना मजा सा आ जाए। बच्चा कह रहा है वो गाबे के बच्चे दिमाग है ना खराब कर। हम भगवान से पता है प्रार्थना हर सोमवार को व्रत रखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन ना बने, उससे कोई फायदा नहीं है, बनेगा जितने मर्जी व्रत रख लो। भगवान भी क्या रखता रहे, चल तेरा पेट सही हो जाएगा, तेरे पेट में गैस वैस खत्म हो जाएगी, वो तेरी अच्छी बात है, बट क्वेश्चन तो बनेगा ऐसा। विदाउट ऐसा क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता जी, ये बात ध्यान रखना, विदाउट ऐसा क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन देखने को ना मिले, आज तक इतिहास में तो कभी हुआ नहीं और मुझे लगता नहीं आगे होगा भी कभी। डन। हाँ अगर कैश में नहीं होता फिर ऐड नहीं करते वो 30,000 पे। टीडीएस कहाँ डिडक्ट हुआ क्वेश्चन में? टीडीएस कहाँ डिडक्ट हुआ क्या क्वेश्चन में? टीडीएस कहाँ है भाई? टीडीएस तो है ही नहीं, कहाँ है टीडीएस? टीडीएस तो बताया ही नहीं मुझे, टीडीएस कहाँ से डिडक्ट करेंगे? अगर टीडीएस होगा तो माइनस करेंगे ना। हाँ राउंड ऑफ कर सकते हो बाद में, राउंड ऑफ कर सकते हो, राउंड ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं है जी, राउंड ऑफ करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में उसको राउंड ऑफ जरूर कर सकते हो, राउंड ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। डन। सर बेनिफिट ऑफ 10,500 रीजन यही है ना विच हैव बिन क्रिएटेड, बट हाँ यस बिल्कुल देख सकते हैं हार्दिक, बिल्कुल देख सकते हैं जी। सर नोट फॉर ऑल वाली सीरीज देख लो पास हो जाओगे 100%, 1000%। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी से टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं, उस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं कहा, तो अगर क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं कहा तो फिर वो हमारी एजम्पशन के ऊपर बेस है, फिर आपको टीडीएस निकालना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंगली फिर माइनस करना पड़ेगा। उसने यहाँ पे ग्रोस दे रखा है मुझे, ठीक है ना, अब ग्रोस दे रखा है तो अब हम टीडीएस का पॉइंट अपनी तरफ से लेके नहीं चलेंगे। आप लेके चल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो भी सही होगा, पर फिर तुम्हें टीडीएस निकालना पड़ेगा, एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी कि टीडीएस इतना कट चुका है, देन फिर यहां पर माइनस करना पड़ेगा जी। नहीं नया फोन नहीं लिया, वही पुराना फोन चल रहा है अभी। चलो इधर देखो ध्यान से जी, अब इसको नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट कैसे करोगे बताओ? इसको नॉर्मल स्कीम में पता कैसे कन्वर्ट करोगे? मैं बता रहा हूँ नॉर्मल स्कीम में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब जो ये तुम्हारी इनकम आई है ना, जो ये तुम्हारी इनकम आई है, जो तुमने इनकम निकाली है ये वाली 10 वाली, ये जो तुमने इनकम निकाली है, इसमें कुछ नहीं होगा, डिडक्शंस माइनस कर देंगे बस। इसमें क्या होगा? डिडक्शंस माइनस कर देंगे। अच्छा डिडक्शन कौन से माइनस करेंगे? मेरे ख्याल से डिडक्शन सिर्फ एक ही है, ये 10,000 वाली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाली 10,000 की डिडक्शन है, बस एक ही है जी। तो इसमें से आप 10,000 रुपए की आप डिडक्शन माइनस कर दोगे यहाँ पे जी, तो बस मेरे ख्याल से आपका डिडक्शन यही बचेगी। देन फिर आप नॉर्मल वाले लगा दो, ठीक है, नॉर्मल वाले लगा दो और यहाँ पर माइनस कर दो। सर
आंसर में इन्होंने टीडीएस माइनस किया। हाँ तो टीडीएस माइनस कर सकते हो, टीडीएस माइनस करने में क्या है यार, एक बात मेरे को बताओ, इधर देखो ध्यान से नालायक को, ये जो है ये वाला पॉइंट जो दे रखा है इन्होंने, ये डिविडेंड, इसका 10% लो, 10% टीडीएस कटता है तो 1052 का ये काट लो जी, ठीक है, और इसका टीडीएस काट लो यहाँ पर, ये 10% ये 760 का ये काट लो, ये टीडीएस भी बाद में माइनस कर दो टैक्स में से, तो आपका टैक्स रिफंडेबल और निकल के आ जाएगा। एडवांस टैक्स माइनस कर दिया, फिर टीडीएस माइनस कर दो, टैक्स रिफंडेबल आ गया जी। टीडीएस टीसीएस वाली क्लास यूट्यूब पे डली हुई है जी, यूट्यूब पे डली हुई है, आप वहां से भी टीडीएस और टीसीएस की रिवीजन कर सकते हो, बट टीडीएस टीसीएस आपको डेली बेस पे खुद थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें और बढ़िया समझ में आएगा जी। ट्रैवल फैसिलिटी 115 बीएससी में 3 लाख की एग्जाम्प्ट है ना, किसने कहा 3 लाख की एग्जाम्प्ट है? ट्रैवल फैसिलिटी में 3 लाख की एग्जाम्प्ट कहाँ है? सर 11 मिनट वाली सीरीज फिर से आएगी? कितनी सीरीज चाहते हो मेरे बच्चे, पेपर तुम्हारे आने वाले नालायकों, ये तो मैं बस आ रहा हूँ यूट्यूब पे, ये तो मैं आ रहा हूँ कि चलो तुम्हारा थोड़ा सा फ्लो बना रहे, नहीं तो ये टाइम यूट्यूब का नहीं होता, बच्चा कह रहा है सीरीज पे सीरीज निकालता, और पेपर तुम्हारे अगले साल नहीं है ना, 6 महीने के बाद है, थोड़ा सा ना सेल्फ स्टडी पे ध्यान लगाओ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही अभी भी? आपको अभी भी मेरी बात पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है? बात समझ रहे हो मेरी बात? मेरे उसमें सिर्फ 1 मिनट लगना है शॉट डालने में, बात समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अपना सेल्फ स्टडी पे टाइम लगाओगे तो जीत जाओगे तुम, ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन 6 तक कर लिए ना, 7, 8, 9 आपका होमवर्क है जो आपने करके आना है, ठीक है, तो 7, 8, 9 आपका होमवर्क है, ये तीनों क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करके आने हैं जी। ट्रैवल बेनिफिट 3 लोग रिलेटिव में एग्जाम्प्ट है, नहीं जी, 3 लोग रिलेटिव में कहाँ एग्जाम्प्ट है? एक पेशेंट और साथ में एक अटेंडेंट, बस ये एग्जाम्प्ट है, एक पेशेंट प्लस साथ में एक अटेंडेंट, ये एग्जाम्प्ट है जी। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलेंगे कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लगे रहो, खूब खूब मेहनत करो, अपने ऊपर बिलीव करो, अपने आप से कॉन्फिडेंस करो, और मैं कह रहा हूं जीत जाओगे तुम, बस अपने ऊपर बिलीव करो, बस कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ये बात ध्यान दो जी। ठंडे दिमाग से अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करते चलो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली।